In the last class, we have covered the signal design by two methods, that is trial cycle method and second method which we covered is Webster method. Okay. Now two more methods are remaining which we'll be covering quickly. The third method is the simple design of pedestrian and traffic signal by approximate method, and fourth method would be your IRC method. So what are the steps which we need to follow while designing the pedestrian and traffic signal using approximate method? So based on the approach speed of the vehicles, let us say these are the approach roads at an uncontrolled intersection. So based on the approach speeds of vehicles, suitable amber period is chosen. ठीक है, तो हम लोग सुटेबल एम्बर पीरियड, एम्बर टाइम जो है येलो टाइम, वो चूज़ कर लेंगे। जैसे कि अगर लो अप्रोच स्पीड है तो 2 सेकंड रिकमेंड किया गया है, मीडियम अप्रोच स्पीड है तो 3 सेकंड्स का एम्बर पीरियड रिकमेंड किया गया है, फास्ट अप्रोच स्पीड है तो 4 सेकंड का एम्बर पीरियड रिकमेंड किया गया है। ठीक है। ऑन द सेकेंड स्टेप, बेस्ड ऑन द पेडेस्ट्रियन वॉकिंग ऑफ 1.2 meter per second, pedestrian clearance time is calculated. Okay, so assuming that the pedestrian is walking at a speed of 1.2 meter per second, pedestrian clearance time is calculated. Okay, so if I want to calculate the green time for pedestrian on road 1, okay, let us say if I am interested, w1 is the width of the road 1, w2 is the width of the road 2. Suppose if I am interested in calculating for green time for pedestrian on road 1, let is represented by GP1, that is green time for pedestrian is calculated as W1, that is the width of the pavement of approach road 1, upon initial speed of pedestrian, that is walking speed of pedestrian, that is 1.2 meter per second. So W1 divided by 1.2 plus initial walk period, that is 7 seconds. Okay, green time for pedestrian on road 2 simultaneously, W2 upon 1.2 plus 7. This 7 second is the initial walk period. Okay, now moving to the third point, that is the minimum rate time of traffic signal is taken as pedestrian clearance time for crossing plus initial interval for pedestrian to start crossing. So basically the values which was available for the pedestrian for the green time on road 1 and road 2 that have been considered इक्वल टू द मिनिमम रेट टाइम ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ओके, सो यहाँ पे देखिए GP1 जो आया है, GP2 आया है, दैट इज़ द ग्रीन टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन ऑन रोड 1 एंड रोड 1 2 इज इक्वल टू द मिनिमम रेट टाइम R1 एंड R2 ऑन द अप्रोच routes 1 and 2 simultaneously. Now let's talk about the minimum green time. So how do we calculate the minimum green time? It is calculated as you can know कि अगर हम लोग बात करें, लेट अस से, अगर हम लोग यूजुअली बात करें तो हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज़ ग्रीन प्लस एम्बर प्लस रेड, और साइमल्टेनियसली अगर टू फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, दिस इज़ रेड बी एंड दिस इज़ ग्रीन बी प्लस एम्बर बी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है कि ग्रीन ए प्लस एम्बर ए इज़ इक्वल टू आर बी, और इसको ए और बी को हम कुछ लिखना चाहें, देखिए ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है ना, ये भी सेम है जी ए प्लस ए, और ये आर बी भी सेम है, तो इसको हम लोग दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ G1 प्लस A1 इज़ R2। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ से G1 निकल जाएगा, G1 क्या निकलेगा, G1 निकलेगा R2 में से ये A1 माइनस कर दें। ठीक है, तो मिनिमम ग्रीन टाइम इज़ कैलकुलेटेड एज G1 इज़ इक्वल टू R2 माइनस A1 and simultaneously G2 is calculated as R1 minus A2. So this is the calculation of minimum green time.
minimum red time, which we have already covered above. Okay, now let's talk about the actual green time that is needed. Okay, the actual green time needed is then increased based on the ratio of approach volume for the heaviest traffic volume per आवर पर लेन. अब यहाँ पे जो मिनिमम ग्रीन टाइम इतना है और जो ग्रीन टाइम यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया है उसके बीच में जो डेविएशन होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, according to the approach traffic. Okay, if n1 and n2 are the approach volume of the heaviest traffic per hour per lane on road 1 and 2 respectively, जैसे कि हमने बात किया लेट अस से यहाँ पे जो हैवीएस्ट ट्रैफिक और वॉल्यूम है दैट इज n1 and n2 on road 1 and 2. Okay, so then what we will do, the green time which will be redistributed is calculated according to the traffic approach traffic volume present over the road 1 and road 2. Okay, if g1 is taken from the vehicular consideration, let us say कि हमने ये जो g1 माना मिनिमम ग्रीन टाइम उसको हमने कंसीडर किया. ठीक है, g1 को मान के g2 को कैलकुलेट करेंगे. अगर g2 की वैल्यू जो है मिनिमम ग्रीन टाइम से मतलब ज़्यादा आ रही तो हमारा एजम्पशन सही है, नहीं तो फिर g2 को मान के g1 को कैलकुलेट करेंगे. देखिए कैसे करेंगे, इसका एक एग्जांपल भी लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए. लेट अस से if g1 is taken from the vehicular consideration then g1 और g2 में क्या रिलेशन होता है दैट इज n1 अपॉन n2. तो हम लोग मान लेते हैं फिलहाल के लिए जो g1 दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, g1 जो ऊपर में है ये सही कैलकुलेट किया हमने. ठीक है, तो जी यहाँ से देखेंगे इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, अगर हमें g2 निकालना तो g2 क्या हो जाएगी, ये n2 उधर चले जाएगी n1 उधर, तो n2 अपॉन n1 इंटू g1. ठीक है, अब यहाँ से जो g2 डैश हम लोग निकालेंगे. ठीक है, ये जो g2 डैश निकाले हमने, g2 डैश शुड नॉट बी लेस देन g2 फ्रॉम द पेडेस्ट्रियन मूवमेंट कंसिडरेशन. ठीक है, तो g2 की वैल्यू जो ये आई है, ठीक है, और यहाँ से जो g2 डैश हम लोग निकालेंगे ये g2 डैश जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि दिस इज़ द मिनिमम ग्रीन टाइम. ठीक है, तो उससे कम हो जाता है मतलब कि हमारा जो है वैल्यूज़ वो गलत लिया गया है. इफ़ इट इज़ लेस देन g2 देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट टेक g2 एज फ्रॉम द पेडेस्ट्रियन मूवमेंट एंड फाइंड आउट g1. फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि g2 को हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे और g1 डैश कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फिर g1 डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, g1 डैश इज़ n1 अपॉन n2 इंटू g2. ठीक है, ये अभी एक समझ लेंगे तभी आपको क्लियर होगा कैसे करेंगे. ठीक है, फिर आपको न्यू वैल्यूज़ ऑफ g1 एंड g2 जो है वो मिल जाएंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं पेडेस्ट्रियन मूवमेंट से आपने कैलकुलेट किया, ये बेसिकली ये जो सब कैलकुलेशन हो रहा है दिस इज़ बेस्ड ऑन द पेडेस्ट्रियन मूवमेंट. तो पेडेस्ट्रियन मूवमेंट पर जो आपने कैलकुलेशन किया उसमें पाया कि g1 जो है 20 है, g2 जो है वो 10 है, और अप्रोच रूट्स पे जो वेहिकुलर ट्रैफिक है दैट इज़ 30 एंड n2 जो है 5 है. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक g1 इज़ 20. ठीक है, हमने g1 को 20 मान लिया और हमको पता है रिलेशन क्या, दैट इज़ g1 अपॉन g2 इज़ इक्वल टू n1 अपॉन n2 अगर अप्रोच रोड की ट्रैफिक दी हुई है. तो पहले वाले केस में हमने g1 माना, अब हम यहाँ से g2 डैश कैलकुलेट करेंगे. तो g2 डैश क्या हो जाएगी, n2 बाई n1 इंटू g1. ठीक है, तो n2 अपॉन n1 30 अपॉन 5, सॉरी n2 5 है तो 5 अपॉन 30 इंटू g1 कितना है 20, तो ये कितना आया 3.33. बट हमारा g2 कितना आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 10. ठीक है, तो ये मिनिमम ग्रीन टाइम है. ठीक है, तो हमारा जो कहने का मतलब है कि 10 आना चाहिए था बट यहाँ 3.3 है, मीन्स दिस इज़ रॉन्ग. ओके, हेंस अडॉप्ट g2 इज इक्वल्स टू 10. तो g2 इज इक्वल्स टू 10 हम लोग अगर मान लेंगे ग्रीन टाइम 10 सेकेंड, तो g1 पे देखते हैं कितना होगा. तो g1 डैश ऐसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो g1 डैश क्या हो जाएगी n1 अपॉन n2 इंटू g2. g2 हमने कितना माना है 10 माना है, n1 है 30 अपॉन 5 इंटू 10. ओके, सो दिस इज 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो हमें g1 कितना चाहिए था, g1 हमें 20 चाहिए था और हमारा आ रहा है 60. तो मिनिमम 20 था, आ रहा है 60, मतलब कि दिस इज़ करेक्ट क्योंकि 20 मिनिमम चाहिए था बट हमारा 60 आ रहा है. हेंस द वैल्यूज़ विच वी हैव अडॉप्टेड इज़ करेक्ट इन दिस स्टेप, दैट इज़ g2 इज़ 10 सेकेंड्स एंड g2 is 10 second and g1 is
60. सो दिस इज़ द फाइनल ग्रीन टाइम वैल्यूज़. ओके, उसके बाद हम लोग जब ग्रीन टाइम मिल गया, एम्बर टाइम मिल गया, तो साइकिल लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. द साइकिल लेंथ सो ऑब्टेन्ड इज एडजस्टेड फॉर द नेक्स्ट हायर 5 सेकेंड इंटरवल. जैसे अगर 56 सेकेंड्स आ रहा है आपका साइकिल लेंथ, तो उसको हम लोग 60 सेकेंड ले लेंगे, और जो एक्स्ट्रा टाइम जो डेविएशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी जो है अप्रोच ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, कैसे करेंगे, एक न्यूमेरिकल से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. अच्छा, एक दो पॉइंट और नोट करने के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो इनिशियल वॉक पीरियड जोड़ा था, दैट इज़ इफ़ पेडिस्टन सिग्नल इज़ यूज्ड देन वॉक पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 7 सेकेंड. इफ देर इज़ नो पेडिस्टन सिग्नल इज प्रेजेंट देन मिनिमम वॉक पीरियड इज़ 5 सेकेंड. दिस इज द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन द competition examination. Okay, now let's talk about the numerical. That is, for the data given below, design the timings of the traffic and pedestrian signal using approximate method. Okay, road A is given. जैसे कि अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो let us say this is road A, let us say this is road B. तो ये 21 मीटर का रोड है और ये 15 मीटर का रोड है. ठीक है, विड्थ 21 मीटर है और 15 मीटर है. हाईएस्ट वॉल्यूम फ्रॉम वन डायरेक्शन इज़ 350 व्हीकल पर आवर पर लेन, और यहाँ पे 260 व्हीकल पर आवर पर लेन. एम्बर टाइम जो है दोनों रोड पे 5 सेकंड और 5 सेकंड का दिया हुआ. ठीक है, तो हमें बेसिकली डिज़ाइन करना है, तो वही सेम स्टेप्स प्रोसीजर्स को जो हमने अभी जस्ट पढ़ा उसको एक एक करके फॉलो करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एम्बर टाइम हमारे पास क्वेश्चन में रोड ए और रोड बी पे एम्बर टाइम गिवन है, दैट इज़ 5 सेकेंड, और एम्बर टाइम फॉर रोड बी इज़ 5 सेकेंड. ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, दैट इज़ द ग्रीन टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन सिग्नल बेसिकली. ठीक है, पेडेस्ट्रियन सिग्नल ऑन रोड 1 निकालेंगे. ठीक है, दैट इज़ GP1. ठीक है, तो GP1 निकालने के लिए क्या था, W/1.2 प्लस इनिशियल वॉक पीरियड ऑफ 7 सेकेंड, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन सिग्नल प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो रोड ए की विड्थ कितनी है 21, सो 21 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 7, सो दिस इज 24.5 सेकेंड. ठीक है, तो GPA दैट इज द ग्रीन टाइम बेस्ड ऑन द पेडेस्ट्रियन सिग्नल इज कैलकुलेटेड for the road A is 24.5 seconds. Now let's talk about the green time on the basis of pedestrian signal for the road B. ठीक है, तो रोड बी की विड्थ कितनी है 15 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 7, दिस इज 19.5 सेकेंड्स. ओके, so this is the second step. Okay, and we have already covered above that the green time which was based on the pedestal signal is equal to the minimum rate time. Okay, so can we say like this, GPA is equal to the rate time, minimum rate time for road A, and GPB is equal to the minimum rate time for road B. Okay, so रोड A रोड B की हमें मिनिमम रेट टाइम होगी. अब हमें चेक करना है क्या मिनिमम ग्रीन टाइम. तो मिनिमम ग्रीन टाइम के लिए क्या एक्सप्रेशन था, जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा था कि RA प्लस एम्बर ऑफ A इज इक्वल टू रेड ऑफ B. ठीक, सॉरी, ग्रीन ऑफ A प्लस एम्बर ऑफ A इज इक्वल टू रेड ऑफ B. ये हमने ऊपर पढ़ा था बेसिकली G1 प्लस A1 इज इक्वल टू R2. तो हम लोग क्या यहाँ से G1 निकाल सकते हैं, दैट इज R2 माइनस A1. ठीक है, और RB माइनस AA. ठीक है, दिस इज GA. ठीक है, तो यहाँ पे RB कितना है, RB यहाँ पे दैट इज 19.5 सेकेंड. ठीक है, और एम्बर हमने माना है एस के लिए 5, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो 19.5 माइनस 5 कितना हो गया 14.5 सेकेंड. ठीक है, साइमल्टेनियसली मिनिमम ग्रीन टाइम फॉर रोड बी कितना हो जाएगा RA माइनस ऑफ एम्बर B. ठीक है, तो RA कितना है हमारा, दैट इज़ 24.5 सेकेंड माइनस ऑफ एम्बर ऑन रोड बी इज़ 5, सो दिस इज़ 19.5 सेकेंड. सो मिनिमम ग्रीन टाइम आपका आ गया. ठीक है, अब आपको एक्चुअल ग्रीन टाइम निकालना है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं अप्रोच ट्रैफिक वॉल्यूम से. जो पार्टिकुलर रोड 1 और रोड 2 पे जो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, उसके बेस्ड हम लोग जो है एक्चुअल ग्रीन टाइम रिक्वायरमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं. तो हाउ डू वी कैलकुलेट द एक्चुअल ग्रीन टाइम रिक्वायरमेंट, दैट इज़ G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए.
ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ N1, N1 इज़ द अप्रोच ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ये कितना है देखिए, ये रोड ए पे 350 व्हीकल पर आवर पर लेन है और रोड बी पे 260 व्हीकल पर आवर पर लेन है, ठीक है। तो एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 350 अपॉन 260, दिस इज़ 1.35, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब हमारा क्या होता था, पहले हम GA को एज्यूम करते थे या G1 को एज्यूम करते थे, कहने का मतलब, और G2 कैलकुलेट करते थे और फिर उसको मिनिमम ग्रीन टाइम से मैच करते थे। अगर वो बड़ा मतलब मिनिमम ग्रीन टाइम से ज़्यादा आ रहा है तब हमारा सही है, अदरवाइज़ कम आ रहा है तो गलत है, ठीक है। तो लेट अस से हम सबसे पहले मान लेते हैं GA जो हमने निकाला है दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो 14.5 सेकेंड हम मान लेते हैं GA है, ठीक है। तो GA 14.5 सेकेंड है, तो GB कितना हो जाएगा, GB कितना हो जाएगा, तो GB डैश कैसे निकालेंगे, दैट इज़ N2 अपॉन N1 इंटू GA, ठीक है। तो या बेसिकली कहने का मतलब है NB अपॉन, इसको कुछ 1 और 2 को B या A को आप एज्यूम कर लेंगे अकॉर्डिंगली, कंफ्यूज नहीं होंगे। NB NA अपॉन NB और NB अपॉन NA, ठीक है। तो अब देखिए हमें GB डैश निकालना है, ठीक है। GA हमने माला है 14.5 सेकेंड, ठीक है। NB अपॉन NA अपॉन NB निकाला है 1.35, ठीक है। तो NB अपॉन NA क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1 डिवाइडेड 1.35 इंटू GA है 14.5, तो यहाँ से आया 10.75। बट आपकी जो मिनिमम ग्रीन टाइम ऑन रोड बी था वो कितना था, दैट वाज 19.5 सेकेंड, ठीक है। मीन्स the value which we have taken is incorrect, thus we need to adopt the second value, okay। now let's adopt the second value is GB is equals to 19.5 seconds को मानेंगे और हम लोग फिर GA कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो GA आइए कैलकुलेट करते हैं। तो GA is calculated again GA is calculated as NA upon NB into GB, ओके। तो यहाँ से हम लोग GA डैश कैलकुलेट करेंगे। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस GA डैश, दिस इज NA अपॉन NB इंटू GB। तो NA अपॉन NB कितना है 1.35 इंटू GB कितना है, दिस GB इज 19.5 सेकेंड, सो 1.35 इंटू 19.5 इज इक्वल टू 26.325 एंड हमारा GA कितना रिकमेंडेड था, दैट वाज 14.5 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए this value is greater than 14.5 second, hence the values which we have calculated GB and GA we have considered is correct। so हम लोग यहाँ पे फाइनल जो ग्रीन टाइम है जो अडॉप्ट करेंगे दैट इज GA is 26.325 and GB 19.5 सेकेंड। so this is the final values which we will adopt और एम्बर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक हाईलाइट कर देंगे, हेंस अडॉप्ट दिस फाइनल वैल्यूज, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक फॉर द डेविएशन, और बेसिकली बिफोर चेकिंग द डेविएशन लेट्स कैलकुलेट द साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम क्या हो जाएगी, साइकिल टाइम फिर हम रिपीट करना चाहेंगे कैसे साइकिल टाइम कैलकुलेट करते थे, दैट इज़ अगर ये 2 फेज है तो दिस इज़ ग्रीन ए प्लस एम्बर ऑफ ए, दिस इज़ रेड ऑफ ए, ठीक है, दिस इज़ रेड ऑफ बी, ठीक, एंड दिस इज ग्रीन ऑफ बी प्लस एम्बर ऑफ बी, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हैं साइकिल टाइम, आइदर GA प्लस AA प्लस GB प्लस AB और आइदर RB प्लस RA, ठीक है, बिकॉज दिस कंप्लीट साइकिल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड, ओके। तो हम लोग चाहे GA प्लस AA प्लस RA GA प्लस A प्लस RA लिख सकते हैं, चाहे GA प्लस AA प्लस GB प्लस AB लिख सकते हैं। हम यही लिखेंगे क्योंकि हमने सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली ऊपर। तो दी GA कितना आया 26.325, AA कितना आया 5, GB कितना आया 19.5, ठीक है, एम्बर ऑफ बी कितना आया 5, ठीक है। तो टोटल साइकिल टाइम हमारा आ रहा है 55.825 सेकेंड। तो हम लोग जो नियरेस्ट हायर जो है 5 का मल्टीपल उसको कंसीडर करते हैं। तो 55.825 मीन्स द नेक्स्ट हाईएस्ट इज 60 सेकेंड, ठीक है, हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 5, सो एडॉप्ट साइकिल टाइम ऑफ 60 सेकेंड्स, ठीक है। हम लोग 60 सेकेंड का जो साइकिल टाइम
एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास डेविएशन होगा साइकिल टाइम में उसको हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 55.825 की जगह 60 सेकेंड्स माना। अब 60 सेकेंड्स में डेविएशन कितना हो रहा है, तो 60 माइनस 55.825 ये कितना आया, दिस इज़ 4.175। सो दिस additional time period is distributed into the timing of green. Okay, so additional period of 60 minus 55.825, that is 4.175 seconds, is distributed to green timings in proportion to the approach traffic volume, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग जो है अप्रोच वॉल्यूम जितना है उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रीन टाइमिंग्स में वेरी करा देंगे, ठीक है। तो रोड, अब देखिए हमारे पास इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें इस जो एडिशनल, तो रोड 1 पे कितना एडिशनल होगा, रोड 2 पे कितना होगा, उसको कैसे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे हम लोग वेबस्टर मेथड में करते थे ना, y1 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2 इंटू C0 माइनस एल, तो सेम उसी तरह करेंगे। तो लेटेस्ट से हम लोग एडिशनल टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं रोड ए पे, ठीक है। तो एन ए पे अप्रोच रोड ए पे कितना ट्रैफिक है, दैट इज़ 350। तो एन ए प्लस एन बी कितना हो गया, 350 प्लस 260। रिमेंबर in the question it is given in the data, that is the highest volume from one direction. Okay, so na upon na plus nb, this is 350 upon 350 plus 260 into 4.175. ओके, सो आपने यहाँ पे डेल्टा जी ए कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि इतना एडिशनल ग्रीन टाइम इसमें हम इतने इस पे दे सकते थे, बाकी का रिमेनिंग जो है हम लोग अप्रोच रोड बी पे देंगे, ठीक है। तो हमारा नेट ग्रीन टाइम क्या हो गया, दैट इज़ 26.35 पहले था, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा जो हमारा एडिशनल था उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा जो नेट इफेक्टिव ग्रीन टाइम हो गया दैट इज़ 29 सेकेंड्स। और ग्रीन टाइम बी की बात करें तो 19.5 पहले था प्लस 1.78 ये एक्स्ट्रा जो हमारा जो एडिशनल था, ठीक है। तो ये आया 21.28। बेसिकली दोनों का समेशन 60 सेकेंड होना चाहिए क्योंकि हमने अडॉप्ट किया है साइकिल टाइम ऑफ 60 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल साइकिल टाइम हमारा कितना आ रहा है देख लीजिए, अब जी ए प्लस ए प्लस जी बी प्लस ए बी, तो इन चार का समेशन आ रहा है 60 सेकेंड्स, मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन ऑफ पेडेस्ट्रियन सिग्नल की बात होती है, ठीक है। इसमें डू नॉट वॉक पीरियड ऑफ पेडेस्ट्रियन सिग्नल एट रोड ए इज़ रेट पीरियड ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट बी, ठीक है। बेसिकली जो डू नॉट वॉक पीरियड है पेडेस्ट्रियन सिग्नल एट रोड ए पे, पी एस ए पे, that is the rate period of traffic signal at B. Okay, so if we talk about the pedestrian signal at A, that is PSA, तो यहाँ पे DWA जो है that would be equal to the rate time at approach road B, ठीक है। तो हमें डू नॉट वॉक पीरियड निकालना होगा अगर रोड ए के लिए, तो दैट वुड बी इक्वल टू दी रेट टाइम ऑफ रोड बी, ठीक है। तो आर बी कितना है, हमने सबसे यहाँ पे देखिए, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज आर ए, और आर बी क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ग्रीन ए प्लस एम्बर ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग आर बी। सो दिस इज व्हाट इट इज़ योर आर बी, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आर बी, और जी बी प्लस ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, आर ए, एंड दिस इज योर आर ए, ठीक है। तो आर बी ए की वैल्यू यहाँ से निकल गई, तो हमारा डी डब्ल्यू ए दैट इज डू नॉट वॉक पीरियड फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल एट रोड ए इज इक्वल टू दी आर बी, ठीक है। तो हमारा आर बी कितना हो गया 34 सेकेंड, और आर ए कितना हो गया 20 सेकेंड्स, ठीक है। पेडेस्ट्रियन क्लियरेंस टाइम फॉर रोड ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू अपॉन 1.2, अगर वो इनिशियल वॉकिंग स्पीड उसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो रोड ए हमारा विड्थ कितना है 21 मीटर का है, और रोड बी कितना है 15 मीटर का है, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, अगर 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिल रहा है, दैट इज़ 20 डिवाइडेड बाई 1.2, दैट इज़ 17.5 सेकेंड। पेडेस्ट्रियन क्लियरेंस टाइम फॉर रोड बी विड्थ कितना है 15 मीटर का है, तो कितना टाइम लगेगा 15 डिवाइडेड बाई 1.2, दिस इज़ 12.5 सेकेंड, ठीक है।
द वॉक टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल साइकिल लेंथ। जो वॉक टाइम है, जिस ड्यूरेशन में पेडिस्ट्रियन वॉक कर रहा है, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल साइकिल लेंथ। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉक पीरियड इज और वॉक टाइम इज कैलकुलेटेड एज द रेट टाइम माइनस क्लियरेंस एम्बर टाइम। ओके, तो ये जो हमारा पेडिस्ट्रियन क्लियरेंस टाइम जो निकाला हमने रोड ए के लिए, उसको रेट टाइम में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू ए के लिए अगर हम लोग बात करें तो आर ए माइनस सी आई ए, दैट इज़ दी पेडिस्ट्रियन क्लियरेंस टाइम फॉर रोड ए। इसको लिख भी दीजिए सी आई शॉर्ट में। ठीक है, सी आई ए और दिस इज सी आई बी। ओके, तो यहाँ से आर ए कितनी हुई? आर ए है 26 सेकेंड माइनस सी आई ए कितनी है? 17.5। तो वॉक डब्ल्यू ए आपने निकाल लिया, वॉक टाइम दैट इज़ 8.5 सेकेंड। और फॉर व्हेन पेडिस्ट्रियन सिग्नल इज एट रोड बी, ठीक है, तो वहाँ पे वॉक पीरियड कितना हो जाएगी? आर बी माइनस सी आई बी। आर बी कितना है? 34 है और सी आई बी कितना है? 12.5 है। ठीक है, तो ये आ गया 21.5 सेकेंड। ठीक है, सो अब अगर हम लोग इसको डिज़ाइन करना चाहें, कैसे डिज़ाइन करेंगे? देखिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको दिखा सकें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल। अच्छा, इसमें जो अप्रोक्सीमेट मेथड में डिज़ाइन हम लोग करते हैं, बेसिकली दो अलग कंपोनेंट में डिज़ाइन करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल कंपोनेंट और एक पेडिस्ट्रियन सिग्नल कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल कंपोनेंट की। ठीक है, तो देखिए हमारे जीए में तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा जब 29 + 5। ठीक है, तो जीए 29 सेकेंड और एम्बर ए 5 सेकेंड। ठीक है, और ये साइकिल पीरियड कितने सेकंड का था? हमारा 60 सेकंड्स का। तो बाकी कितना बचा? आर ए दैट वुड बी ऑफ 26 सेकंड। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है जब हमारा ट्रैफिक सिग्नल इस पे जब क्या नाम है, इस पे ट्रैफिक मूव कर रहा होगा, ठीक है, तब हमारे पेडेस्ट्रियन भी इधर साइमल्टेनियसली मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो पेडेस्ट्रियन सिग्नल एट बी देखते हैं ज़रा, रोड बी पे कितने पेडेस्ट्रियन मूव कर रहे होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर अगर ट्रैफिक मूव कर रहा है तो इधर तो पेडेस्ट्रियन मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी व्हीकल में मूवमेंट हो रही है। तो पेडेस्ट्रियन फिर क्या होगा? साइमल्टेनियसली रोड बी पे हो रहा होगा, रोड ए पे नहीं हो रहा होगा। तो ज़रा रोड बी पे देखते हैं, इस पर भी 60 सेकेंड्स के लिए ओपन रहेगा। 60 सेकेंड्स के लिए कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, 21.5 इज़ दी वॉक पीरियड फॉर रोड बी। ठीक है, सी आई बी जो है दैट इज़ द क्लियरेंस, पेडिस्ट्रियन क्लियरेंस टाइम जो है दैट इज़ रोड बी के लिए 12.5। एंड डू नॉट वॉक पीरियड, डू नॉट वॉक पीरियड मतलब कहने का कि अब ये जो है दूसरे वाले रोड पे जो है वो रेड हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ दी डू नॉट वॉक पीरियड, ओके, विच इज़ गिवन एज 26 सेकेंड विच वी हैव कैलकुलेटेड, एंड दिस इज इक्वल टू दी आर ए। ठीक है, सो यही सेम चीज़ है, देखिए दिस इज इक्वल टू दी आर ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब रोड ए पे ट्रैफिक सिग्नल है और रोड बी पे पेडेस्ट्रियन है तब ऐसे डिज़ाइन कर दिया गया। अब दूसरे केस में जब इस वाले रोड पे, रोड बी पे ट्रैफिक है और रोड ए पे पेडेस्ट्रियंस हैं, उसको अब देखते हैं। तो देखिए, रोड बी की बात करें, ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल रोड बी की बात करें तो आर बी कितना है? 34। यही तो सेम यही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 34 + 21 + 5। ठीक है, ऊपर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। और पेडिस्ट्रियन सिग्नल एट जी बी की बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 34 सेकेंड्स प्लस वॉक पीरियड ऑफ 8.5 सेकेंड्स प्लस क्लियरेंस पेडेस्ट्रियन क्लियरेंस टाइम फॉर रोड ए दैट इज़ 17.5 सेकेंड्स। तो इसका भी समेशन देखिएगा 60 आएगा, इसका भी समेशन आएगा 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा। ओके, thus in this way the approximate design for the traffic signal and pedestrian signal was recommended. However, I would recommend कि आप पहले एक बार सारी थ्योरीज को पढ़ें, ठीक है, और ख़ुद से इस न्यूमेरिकल को एक बार समझ के सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ समझाया या इस वीडियो को 2-3 बार देखें तब जाके आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ें की हैं हमने।